بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر تعصب اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. دوستو، اگر آج بھی مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے جابر و ظالم سے آزاد کرا لیا. آج بھی ہندوستان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کا کایا پلٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا چل، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا چل، ملے گی خود بخود منزل. سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ قال النبی صلی اللہ علیہ خادم رہبر امیر مرشد محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا گیا ہے. فوز و فلاح کا ضامن ایک حسین فرمولہ عطا کیا گیا ہے، اور یہ صاف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اگر کامیابی ہو کامرانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تمہارے اندر ہدایت اور روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقویٰ کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی حمایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ. حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ کے فرمان کو اپنے سینے سے لگاؤ، آپ کے تمام ارشادات کو اپنے آنکھوں پہ بٹھاؤ، اور سنت نبوی کو اپنی زندگی میں داخل کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سے رہا تھا اور گلشن اعظم ماتم قدح بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عداوت کی تیرہ تار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و فضول زبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. ایسی پرآشوب زمانے میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھا، الفت و محبت کا انوکھا سر چشمہ تھا، وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین حکم کا درجہ رکھی تھی، جس کے اندر انسانیت شناسی اور ہردم نوازی کا وصف نمایا تھا. چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کی پھول ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، جہالت و ناخواندگی نے راہ فرار اختیار کی، رشد و ہدایت کا نیا دریا رواں ہوا، لوگوں کو ہردم آزادی کے بجائے ہردم نوازی کا پیغام ملا، انسانوں کو حق تلقی کی ضد اشارہ قربانی کی تعلیم دی گئی، اس خزارہ شدہ چمن کو بہار نو نصیب ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا ایک حسین گہوارہ بن گیا. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل فکر سے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھایا جاتا، اس کی بے چینی اور تڑپ کو محسوس کیا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت و شرافت قاتل کی دنیا، یہ کیونکہ برداشت کر سکتی تھی، کیونکہ اسے صبر و شکیائی حاصل ہو سکتی تھی. حضرات، اگر مجھ سے آج یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کے سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، جس کے سینے میں سارے جہان کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانوں کو حیات نور بخشی تھی، کس کی زندگی ہمارے لیے ایڈیل اور نمونہ ہے، تو میں کہوں گی کہ وہ نبی اکرم صفی اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کے سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہان کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانوں کو حیات نور بخشی تھی. اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گی کہ وہ ہمارے پاس اس کے سوا دو دلائل موجود ہیں. خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر
के महकूम को एक नजर देखो। अगर तुम उस्ताद और सुफे के जैसे गाह के आजार ना से हो तो मस्जिद मदीने के मिंबर पर खड़े होने वाले सुनो। अगर तुम यतीम हो तो अब्दुल्ला व आमना के जिक्र गोसे को ना छोड़ो। अगर तुम बच्चा हो तो हलीमा सादिया के लाडले बच्चे को देखो। अगर तुम जवान हो तो मक्के के एक चाहा को देखो। अगर तुम अदालत के काजी और पंचायतियों के सालिस हो तो काबे में नूर अफ्तार से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो। अगर तुम बीबियों के शहर हो तो खदीजा और आयशा के मुकद्दस शहर के हयात पाक का मुताला करो। अगर तुम औलाद वाले हो तो फातिमा के बाप और हसन और हुसैन के नाना का हाल पढ़ो। जहे नसीबा अगर बना ले नबी को स्वयं शार अपना, जहे नसीबा अगर बना ले नबी को स्वयं शार अपना, इसी में पिन्हा है सर बुलंदी, इसी में पिन्हा वकार अपना। हमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वस्सलाम। ए बच्चों शांत रहो ना रे तुम लोग, बहुत सामाइन आगे के खड़े नहीं होंगे, आप लोग अपनी जगहों पर बैठे रहें ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। संजीदगी के साथ बैठे। बेहतरीन एक्शन आपके सामने, एक्शन आपके सामने दिखाया जा रहा है। ए मुस्लिम मेरी बहनों पर्दे से न घबराओ, दिखाया जा रहा है। ए मुस्लिम मेरी बहनों पर्दे से न घबराओ। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ छोटे छोटे बच्चों से जो कुर्सियों पर जगह लिए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप यहाँ पे जगह खाली है, आप तो आगे आ जाएं और बैठ जाएं। कुर्सियों को खाली छोड़ दें अपने बड़ों के लिए। बड़े हमारे मेहमान किराम खड़े हैं, आप अदब और एहतराम के साथ। मैं कुछ नौजवानों साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें मदद करें, बच्चों को कुर्सियों से उतार कर नीचे बैठा दें। हाफिज अबू उबैदा साहब, आपसे मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि इन बच्चे जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको भेज दें आगे बैठने के लिए। हाफिज इनायतुल्लाह साहब, हाफिज वसीम साहब, आप भी बच्चों को आगे भेजें। जितने भी बच्चे कुर्सी पर बैठे वो आगे आ जाए, तिरपाल पे बैठ जाए, तिरपाल पे जगह खाली है, आगे आ जाए। तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है, आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया, फातिमा का ख्याल आ गया, फातिमा का ख्याल आ गया। मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये
गवाही है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको, इस्लाम मिटाने हम देंगे न कभी तुमको। मेरी बहनों पुख्ता दिल कितना है वो दिखलाओ। मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। ऐ मेरी मुस्लिम माओ बहनों, याद रखना तुम उस नबी की उम्मत हो जिनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया का ये आलम था कि उनकी आखिरी वसीयत भी ये थी कि मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाया जाए ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे जनाजे पर भी ना पड़े। सुभान अल्लाह, कुर्बान हो हमारी जिंदगी हजरत फातिमा की हया पर, और सलाम हो सारी माओ बहनों का हजरत फातिमा की हया को। तो भाड़ में जाए ऐसा एजुकेशन, ऐसी तालीम, ऐसे इदारे जो इस्लाम और इस्लाम के अहकामात को निशाना बनाते हैं। इस्लाम के अहकामात को निशाना बनाते हैं। इस्लाम 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 जिंदाबाद, इस्लाम 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 जिंदाबाद। जागो मेरे शहजादों इस्लाम के जाबाजों, जागो मेरे शहजादों इस्लाम के जाबाजों। इस्लाम का दिल अपना इस्लाम के गमखारों, इस्लाम के गमखारों। दिखलाओ उमर जैसी हिम्मत भी वो ताकत भी, बतलाओ खालिद की तलवार वो सीरत था। मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। हिजड़ों की रुकावटों इस्लामी फराइज में, हिजड़ों की रुकावटों इस्लामी फराइज में, कुत्तों के जुल्म जब हो इस्लामी फराइज में, इस्लामी फराइज में। छोड़ेंगे ये दुनिया को इस्लाम की खातिर हम, उठ जाओ ज़का तुम भी इस्लाम का लेकर मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। ऐ मुस्लिम मेरी बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही काफी शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा था। यकीनन यहाँ के जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम के असातिज़ा ने, यहाँ के मुअल्लिम व मुअल्लिमा ने काफी शानदार तरीके से मेहनत कराया बच्चों को। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां आकर यहाँ पे तकरीर, हदीस और एक्शन ड्रामा आपके सामने पेश कर रहे थे। यकीनन काफी मेहनत किया उन्होंने, और आपके सामने ये बच्चे साहब शेखुल हदीस जामिया बिन अब्बास और गुजरात, और हमारे सामने शायर इस्लाम भी तशरीफ लाते हैं कारी नदीम साहब, और इसी तरह मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, इसी तरह बहुत सारे मेहमान हमारे जनाब आफ्ताब साहब नदवी दामाद भी तशरीफ फरमा है। आपके सामने खिताब आम होना है। और आपको बताता चलूं कि इस जलसे की सदारत के फराज अंजाम देंगे जनाब मौलाना दाऊद साहब नदवी, उस्ताद मदरसा जामिया इस्लामिया जमियतुल इस्लाम इस्लामिया रामनगर बूटा।
میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی کرسی کو سنبھالیں. مولانا داؤد صاحب ندوی دامت برکاتہ. بلا تاخیر اب میں آپ کے سامنے اس محفل کو آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کراؤں گا، جس سے پہلے سب سے پہلے میں جس کے لیے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں قاری عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ، جو اس مدرسے کے معلم ہیں. میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں اس شے کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز محفل کا، اس نور سے ہم پا جائے راستہ منزل کا. جیس پر جناب قاری عبدالسلام. شاعر صاحب سب پھولے سے منہ دکھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہ سب کا کوئی ضروری نہیں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والروح والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब इसके बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं हाफिज सिफतुल्लाह साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और नाते नबी गुनगुनाएं और हमारे सामईन के दिल को कुलूब को सुकून पहुँचाएं। हाफिज सिफतुल्लाह साहब गैस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और शुराएज़ाम और हाज़रीन महफिल, पहली मर्तबा आपकी दयारे मोहब्बत में हाज़री हुई। आइए एक मतला और एक शेर पढ़कर मैं शरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। उस माथे कि दामन न छूटे का हाथों से मोमिनो, दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, कि दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, कि बस देर है अंधेरे नहीं है खुदा के घर, बस देर है अंधेरे नहीं है खुदा के घर। फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि थोड़ा इको बढ़ा दे, इको बढ़ा दे थोड़ा सा। कि दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, हाथों से मोमिनो। कि इश्क मुस्तफा जब से आबसा वसीले में, कि इश्क मुस्तफा जब से आबसा वसीले में, आबसा वसीले में, इश्क मुस्तफा जब से, कि इश्क मुस्तफा जब से इश्क मुस्तफा जब से आबसा वसीने में, आबसा वसीने में आरज़ू तड़पती है, आरज़ू तड़पती है। अरे मैं रहूं मदीने में, आरज़ू तड़पती है। आप लोग बहुत खामोश से सुन रहे हैं, एक बार सुभान अल्लाह कह लीजिए, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि आरज़ू तड़पती है, कि बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की में, याद मेरे सीने में। उड़ा ले चल चल चल, ए बाबा उड़ा ले चल, हम सबको मदीने
सबको मदीने में आरज़ू तड़पती है। और नहीं भाई, मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तलाश करना रहता था सहाबा कराम को तलाश करते थे। आइए बंद हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएं कि आरज़ू मदीने की कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे, कि जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे, रास्ता महक उठे, जिस तरफ गुजर जाए, कि जिस तरफ गुजर जाए और जिस तरफ गुजर जाए रास्ता महक उठे, रास्ता महक उठे। अरे है कमाल की खुशबू, कमाल की खुशबू आपके पसीने है, कमाल की खुशबू आपके पसीने में बस गई मदीने की। आइए हज़रत नबी पाक का मतलब पेश करता हूँ, समाज हमारा इरशाद कि दुनिया में कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा अरे आया है ना आएगा, दुनिया में कोई ऐसा कि दुनिया में कोई ऐसा अरे आया है ना आएगा, दुनिया में कोई ऐसा आया है ना आएगा। सरकार दुआ से ये जहां महके, जिससे ये जहां जिससे ये जहां महके आया है ना आएगा, दुनिया में कोई ऐसा का सफर देखो। और इस शेख में अपने उस्ताद मोहतरम जनाब काजी मुजीबुर रहमान साहब की तवज्जो चाहता हूं, समझना हाफिज सफीउल्लाह साहब, एक मिनट। ऑपरेटर साहब आप जहाँ कहीं भी हो एक कोई दूसरा माइक लाइए, इसमें बैटरी बहुत कम है, या तो इसकी आवाज़ बढ़ाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाअल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नवाजते रहे, हौसला अफजाई करें। बहुत बेहतरीन नाच पढ़ रहे हो आप लोग, हौसला बढ़ाते रहे, पढ़िए। बहुत अच्छा। दुनिया में कोई ऐसा कि एक पल का सफर देखो, एक पल का सफर देखो, मेरा जो में आका का एक पल का सफर देखो, पल का सफर देखो, एक पल का सफर देखो, अरे मेरा जो में आका का एक पल का सफर देखो, मेरा जो में आका का सिजरा
दुनिया में कोई ऐसा कि जो देख ले चेहरे को दुश्मन भी पढ़े कलमा, जो देख ले चेहरे को कि जो देख ले चेहरे को, अरे दुश्मन भी पढ़े कलमा, दुश्मन भी पढ़े कलमा, दुनिया में हंसी ऐसा अरे आया है न आएगा, दुनिया में हंसी ऐसा। ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहतरम सामीन किराम, बतौर ख़ास मेरी माँ और बहनों, ये जामिया इस्लामिया दारुस्सलाम की पुररौनक और हसीन जलसा की कामयाबी का राज आपके सीनों में है। मुझे ऐसा लगता है कि टेंट वाले के दिमाग में ये बात नहीं थी कि इतने खचाखच भरे हुए मजमा में लोग आएंगे और इसको जमाएंगे। ये महज अल्लाह का करम है कि तमाम मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है इस जलसे की तरफ जो है खींच खींच करके आ रहे हैं। मोहतरम हजरात, आप जहाँ तशरीफ फरमा हैं, अगर घर में बैठे कोई बात करें और बच्चे जब वहाँ दौड़ा हुआ और हंगामा करता हुआ नजर आए तो आपको गुस्सा आएगा। आपके इस जलसे में दूर दूर से उलमाए किराम और मेहमानान एज़ाम तशरीफ लाए हैं। वो अपनी अपनी दिल की बात आपके सामने पेश करेंगे। हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उनकी बातों को दिलों की गहराई से सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और सभी लोग खामोशी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठें। वस्सलाम। मैं हाफिज सफीदुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो नात गुनगुनाया इसमें बहुत सारे इनाम और हसीन आया, आप आए और अपना इनाम ले जाए। हाफिज सफीदुल्लाह साहब। अब बिला ताखीर मैं आपके सामने खतीब बेमिसाल हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी, उस्ताद फिक़ह हदीस, उस्ताद जामिया हसन संजरी, कोट फतेहपुर, शाख दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ अदब और एहतराम के साथ कि आप तशरीफ लाएं और हम सामिईन को अपनी वाज़ाना अपनी नसीहत से नवाजें। मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी, उस्ताद जामिया हसन संजरी, कोट फतेहपुर, शाख दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیگر مخلوقوں سے بچا کر کے ان تمام مخلوقوں میں جو معزز تھا اللہ کے نزدیک، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اس لیے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انواع اقسام کے مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اگر ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے کسی کو محترم اور مکرم بنایا ہے وہ انسانوں کی جماعت ہے۔
لیکن ہوتا यूं ہے کہ اللہ रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को जितना मुहतरम मुकर्रम और बाइज्जत बनाया है, बसा औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हम लोग इंसानियत को छोड़ करके दरिंदे सिफत इंसान बन जाते हैं। अल्लाह से हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें इंसान बनाया और उसमें भी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया है, तो अल्लाह के इस अफजलियत को हमें बाकी रखनी चाहिए और इस बका के साथ हम सबको जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। याद रखिए, अगर आम और आप इस्लामियत का जो निजाम है, इस्लाम की जो तहजीब है, हमारा और आपका जो कल्चर है, हमारा और आपका जो नेचर और फितरत है, अगर हमने इस्लामी फितरत से बगावत की, अगर हमने इस्लामी शायरा को छोड़ करके दूसरी शायरा को हमने इख्तियार किया, सिराते मुस्तकीम को छोड़ करके हमने सिराते मुस्तकीम से हट करके दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, अगर हमने अपनी जिंदगी की असल राह को छोड़ करके दूसरी राह पर चलने की कोशिश की, तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाए, कानून और शरीयत की पाबंदी की जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। इसलिए मैंने कुरान करीम की जो आयत का इंतखाब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। बसा औकात होता यूं है, अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, हम मुसलमानों का अलमिया ये है, जिस कौम का आगाज, जिस कौम की इब्तिदा इक़रा से हुआ था, तालीम से हुआ था, आज वो कौम इस्लामी शाहरा से हट करके गैर शाहरा की तरफ, गैर निज़ाम तालीम की तरफ वो गामज़न होते हैं और ये भटकते हुए क्या कहते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, ए सहाबा किराम, मैं तुम लोगों को मुखातब हूँ और मैं आज तुम्हारे सामने एक नसीहत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने एक सीधी लकीर खींची और उस सीधी लकीर के इर्द गिर्द उसके अगल बगल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करते हुए फरमाया, याद रखो, अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो, सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो और इस्लामी निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो, ये जो सीधा रास्ता है, इस सीधे रास्ते ये जो सीधी लकीर खींची गई है, इस लकीर के मुताबिक जिंदगी गुजारो और इस लकीर के इर्द गिर्द इसके अगल बगल में जितनी 60 टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची गई है, अगर इस रास्ते पर चलोगे तो हर लकीर पर शैतान बैठा हुआ है और तुम्हें इंसानियत के रास्ते से हटा करके दरिंदा सिफत इंसानियत की तरफ ये रास्ता लेकर के चला जाएगा। तो हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, अल्लाह का जो निजाम है, अल्लाह की जो बनाई हुई शरीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उसके मुताबिक हम सब को जिंदगी गुजारनी चाहिए। अफसोस ये होता है कि हमारे इलाके में बेशुमार इदारे हैं, मदारिस काफी हैं, लेकिन लोगों के अंदर बेउसूली ये है, बेज़ाब्तगी ये है, हर आदमी एक दूसरे इदारे से नफरत करता है, हर आदमी दूसरे इदारे को बेज़ो अदावत और हसद की निगाह से देखता है। यही वजह है हमारे इलाके में कल तक सिर्फ और सिर्फ एक इदारा था और उस एक इदारे की कमी की वजह से लोग तालीम याफ्ता कम थे, कामयाब कम थे। आज आप खुद जायजा ले लीजिए, गौर कर लीजिए, जितने ही मदारिस का इजाफा अपने इलाके में हुआ है, उतने ही बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता हो रहे हैं। उसकी वजह यह है, जब मदारिस की कसरत होंगे, मसाजिद में मकातिब का इंतजाम किया जाएगा, हमारे घर की बच्चियां और बच्चे ये तालीम से वाकिफ होंगे, इस्लाम से वाकिफ होंगे और अपने मजहब की जो शनाख्त है उस शनाख्त को बाकी रखेंगे। वरना होता यूं है
जब तक मदारिस का इंतजाम नहीं था, उसका इंसराम नहीं था, हमारे यहाँ लोग बहुत ही ज्यादा की तादाद में लोग अनपढ़ हुआ करते थे। लेकिन आज अपने इलाके में जायजा लीजिए, गौर कर लीजिए, देखिए और अपने इलाके के माहौल को पहले से आप बेहतर पाते हैं या नहीं, इसका मुहासबा आप खुद करिए। इसकी वजह यह है, जब तक इदारे नहीं थे हम लोग ये कमी महसूस करते थे कि हमारे यहाँ इजलास क्यों नहीं होता है, हमारे यहाँ जलसे क्यों नहीं होते हैं। दूसरे इलाकों में जलसे जुलूस काफी होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रहम करम से अपने इलाके में जितने ही इदारे वजूद में आ रहे हैं, उतने ही बच्चे और बच्चियां तालीम याफ्ता हो रहे हैं। उसकी वजह यह है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर सुफ़ा नामी चबूतरे से एक मदरसे का आगाज किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मदरसे के तने तना मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, और सहाबा कराम आपके शागिर्द हुआ करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे का जो निजाम मस्जिद नबवी सुफ़े से जो आपने आगाज फरमाया, और आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार इदारे कायम है, और तमाम इदारों को शजरे नसब, तमाम इदारे का शजरे नसब, हसब व नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक पहुंचता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इदारा कायम किया था, तमाम का शजरे नसब वहां तक पहुंचता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, जितने मदारिस और मकातिब के ये जो जाल बिछे हुए हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दाग बेल डाली, जो बीज आपने डाली, आज ये पौधे की शक्ल में एक तनावर दरख्त बन चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेहनत ने तमाम कायनात के निजाम को बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल कलील मुद्दत में कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया, ताकि हम मुसलमानों के लिए और जो भी लोग तक़वा और परहेज़गार हैं, सबों के लिए हिदायत का सामान बन सके। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों की हिदायत के लिए कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। और ये कुरान करीम हमें हर रास्ते पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हिदायत की तरफ गामज़न करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिश और उनकी मंशा ये है कि उम्मत मुहम्मदिया भटकने न पाए, भागने न पाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी निजाम को मजबूत करने के लिए शुरू से अंबिया किराम का जो सिलसिला शुरू फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम का मकसद और तमाम अंबिया किराम के मिशन सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर लोग अपनी उम्मत को इस बात की दावत दे, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर इस जमीन पर, इस धरती पर अगर किसी की इबादत की जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों के अंदर तालीम और तहजीब से कोई वाकफियत नहीं है, वो सिरात मुस्तकीम पर चल नहीं पाते हैं, वो सीधे रास्ते पर चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो कमियों के शिकार रहते हैं, गलत फहमियों के शिकार रहते हैं। उसके नतीजे में दुनिया भी तबाह बर्बाद होती है और आखिरत भी तबाह बर्बाद होगी। लेकिन जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करता है, उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, ऐसे लोगों की दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। तो जरूरत है हमारे इलाके में जितने भी मदारिस हो जाए, उन तमाम मदारिस का इस्तेमाल किया जाए, बशरो चश्म उसको कबूल किया जाए। और आज 4 इदारे नहीं, मैं कहता हूं कि 6 और खुल जाए, लेकिन ये उम्मत के लिए सवाल नहीं बल्कि उम्मत का मुस्तकबिल है। क्योंकि लोग अपने नजरिए को मुख्तलिफ समझते हैं, लोग अपनी जाती दुश्मनी को इदारे पर उतारने की कोशिश करते हैं। हमें और आपको ये चाहिए, अगर किसी शख्स से जाती दुश्मनी है, उस जाती दुश्मनी को इदारे से न जोड़िए, खुदारा मसाजिद मदारिस मकातिब से न जोड़िए। इसलिए कि ये मदारिस मसाजिद मकातिब ये किसी शख्स का नहीं, किसी जात का नहीं, चूंकि ये मदारिस और मकातिब का जो निजाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के नतीजे में उनकी मरहूम मिन्नत है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में मसाजिद मदारिस के जाल बिछे हुए हैं। तो हम लोगों को जितने भी मदरसे हो जाए, स्कूल हो जाए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जरूरत इस बात की है
کہ ہمارے یہاں جو لوگ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف دینی چاہیے، دھیان دینی چاہیے۔ اگر مدارس 4 یا 5 ان چاروں علاقوں میں ہو گئے ہیں، ایک کوئی اچھا اسکول ہونا چاہیے تاکہ اس اسکول کے ذریعے سے ہمارے بچے ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے اور دیگر شعبے میں ترقی یافتہ ہو کر کے وہ سرکاری نوکر بن سکے۔ لیکن ہم لوگ ایک دوسروں کی دشمنی اور عداوت میں پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے اور خواہ کی بے تکی باتوں پر دھیان نہیں دینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان اور یہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو جو بھی پڑھے گا، قرآن کریم کے مفاہیم کو اور ان کے ترجمے کو جو بھی سمجھ کر کے پڑھے گا، قرآن کریم کے اوپر وہ ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بسا اوقات جو باتیں ہمارے مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، جو باتیں ہمارے دل دماغ ایکسپٹ کرتے ہیں، جو باتیں دل دماغ ہمارا قبول کرتا ہے، ان باتوں کو مان لیتے ہیں، اور جن باتوں کی طرف ہمارا دل کا رجحان قبول نہیں کرتا، ہمارا دل اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، ان باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کا ایک ایک فرمان، قرآن کریم کا ایک ایک حکم، قرآن کریم کا ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل ترجیح ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں سب ہمارے لیے قابل مستحسن ہے۔ لیکن ہم لوگ بغض و حسد کے اندر اس قدر گھرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے، اس نفرت کے داغ بیل ڈالنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم لوگ شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ کی شریعت اسی لیے نازل ہوئی کہ تاکہ مسلمان اہل ایمان صحیح سلامت اچھی زندگی کر سکے۔ اللہ کو کبھی اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بندے کیا کہتے ہیں پریشانی میں الجھاؤ کے شکار رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں ہمارا بندہ آسانی کی طرف بڑھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو نفرت سے روکو، لوگوں کے اندر نفرت میں ڈالو، لوگوں کو رغبت دلاؤ، دلچسپی پیدا کرو، لوگوں کے اندر رغبت پیدا کی جائیں گی، ان کے اندر دلچسپیاں پیدا کی جائیں گی، وہ لوگ اسلامی ماحول کی طرف اور اسلامی نظام تعلیم کی طرف بڑھیں گے۔ جب اسلامی نظام تعلیم کی طرف ہمارا رخ ہوگا، ہم لوگ اس کی طرف پھریں گے تو ہمارا نظام زندگی بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے، احادیث نبویہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خدا را ان لوگوں سے التماس کرتا ہوں آپ اللہ کی طرف رجوع کریے، قانون شریعت کی طرف رجوع کریے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی طرف پلٹیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ غور کریے، سوچیے اور سمجھیے، میری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی جائزہ لیں اور اپنے نفس کا اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ کیا ہم کسی اپنے بھائی سے اور اپنے رشتہ دار سے، اعزاء اقارب سے، اپنے خاندان سے کیا ہم بغض و حسد کرتے ہیں؟ کیا اس محفل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ایک دوسروں پر ہم بہتان تراشی کرتے ہیں، ایک دوسروں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کے ساتھ پیش آتے ہیں،
दूसरों को बहुत बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, उससे खुदारा इज्तनाब करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हकीकी मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जुबान से महफूज रहने का मतलब ये है उसे गाली न दी जाए, उसे बुरा भला न कहा जाए, उनके ऊपर गीबत और झूठे इल्जाम न लगाया जाए, उनके ऊपर इफ्तिरा पर्दाजी न किया जाए, उनका तमस्खुर न किया जाए, उनका मजाक न उड़ाया जाए। और हाथ के महफूज रहने का मतलब ये है, ये हमारा दाहिना हाथ किसी के खिलाफ जबरन जुल्मन किसी के ऊपर ना उठे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो इस हाथ को बचा के रखिए, बाजू को बचा करके रखिए, इसकी हिफाजत करिए। इसका काम आप इस्लाम की इस्तेहकाम के लिए, शरीयत की मजबूती के लिए कीजिए। किसी के ऊपर खुदारा जुल्मन हाथ ना उठाइए। मैं औरतों के जानिब मुखातब होते हुए एक वाकया सुनाता हूँ। अलीगढ़ के अंदर एक मुकाबला हुआ, वो मुकाबला झूठ का था और ये कहा गया कि आज के मुकाबला जो झूठ के उन्वान से इनाम उस बंदे को दिया जाएगा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। तो जब ये ऐलान किया गया तो काफी लोग वहां पर पहुंचे और एक जलसे का इंतजाम किया गया, छोटी मुहिम कायम की गई, हकम हजरात वहां पर बैठे। लेकिन बात तजीज में सामने आई कि इनाम उसी बंदे को मिलेगा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। तो लिहाजा प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम के शुरू होने के बाद 3 शख्स खड़े हुए और तीनों ने अपने अपने झूठ का दावा पेश किया। एक साहब खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि आपका झूठ क्या है, आप बोले। उन्होंने कहा मेरे दादा मोहतरम एक छलांग में चांद पर पहुंचते हैं, दूसरे छलांग पर सूरज पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये नामुमकिन शय है, किसी इंसान की बस में यह ताकत नहीं कि एक कूद में सूरज पर पहुंच जाए और दूसरे छलांग या कूद में चांद पर पहुंच जाए। तो हकम हजरात की सबसे ज्यादा कसरत से जहन्नम में जाने वाले जो शख्स होंगे वो औरत। लिहाजा औरतों को यह चाहिए कि अपने अंदर सुकून पैदा करे, कम बोलने की कोशिश करें। जब आप कम बोलेंगे आपकी जुबान खता नहीं करेगी। जब आपकी जुबान खता नहीं करेंगे आप बुराई से महफूज रहेंगे, शर से महफूज रहेंगी। इसलिए जबान और शर्मगाह की हिफाजत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया है, और जबान और शर्मगाह जो शख्स इन दोनों की हिफाजत कर ले, यकीनन जान लीजिए दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना करके इसीलिए भेजा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को और अपने मुत्तबईन को ये बात का पैगाम दे दे, लोगों को सिखा दे और बतला दे। आप अपनी उम्मत के अंदर कोई भी कमी न करिए दीनी तालीम को पहुंचाने में और दीन की नश्र व इशाअत में। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए मुकम्मल आपने दावतें दी। सहाबा किराम ने मेहनत की, ताबईन ने मेहनत की, तबे ताबईन ने मेहनत की, उलमा ने, अइम्मा ने, मुज्तहिदीन ने, सबों ने मेहनत की। तब जाकर के इस्लामी निजाम एक मुकम्मल निजाम बना और इस मुकम्मल निजाम के तहत हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक हमारी और आपके अंदर सलाहियत दी है, कुव्वत दी है, हम जब तक इस रोए जमीन पर, इस धरती पर जिंदा रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानी मग़बून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। लोग धोखे में हैं, गफलत में हैं। ये 2 नेमतें ऐसी हैं जो लोगों को धोखे में रखती हैं, गफलत में रखती हैं। वो 2 नेमत क्या है? अस्सिहत वल फराग। एक तो सेहत और तंदुरुस्ती। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपको सेहत दी है, तवानाई दी है, तंदुरुस्ती दी है। इस तंदुरुस्ती को बहाल रखिए और इस तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम की नश्र व इशाअत, ईमान की हिफाजत, इस्लाम की आबियारी में इसको सर्फ करिए, न कि इस्लाम के खिलाफ जो तरह तरह के यलगारे होते हैं, हमले होते हैं, उसमें जाकर के हम हिमायत करें और उसकी बाजू का ताकत बने नहीं। दूसरी चीज फरागत। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो वक्त दिया है, ये वक्त बहुत ही कीमती है। इस वक्त को इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए,
دین کی تحفظات کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تعلیم کے لیے صرف کریے، تب جا کر کے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کو بھی کامیاب بنائے گا۔ اس لیے اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان جب تک کے لیے آیا ہے سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی جب موت آ جائے گی ایک لمحے کے لیے بھی ہم سب کو فرصت نہیں ہے۔ جو وقت مقرر ہے، جو وقت متعین ہے، جو وقت محدود ہے، اس وقت محدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اور آپ کے نام سے موت کے فرشتوں کو بھیج دے گا، وہ ہماری اور آپ کی روح کو قبض کر لیں گے اور اس دنیا سے دار فانی کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ہم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کو مالدار بنانے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے ہر ایک چیز کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے زمین جائیداد کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین ساز و سامان کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بہترین محل تیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بال بچوں میں سے کسی ایک بھی بچے کو تیار کرتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کا باعث بنے گا؟ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان مر جاتا ہے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے جن کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے صدقہ جاریہ، یعنی ہم تمام مسلمانوں کو مرد عورت کو یہ چاہیے وہ صدقہ جاریہ دے۔ اور یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مان لیجئے جامعہ دارالسلام یہاں پر قائم ہے، یہاں پر جب بھی بلڈنگ کا آغاز ہو، جب بھی یہاں پر تعمیراتی کام شروع ہو، آپ یہاں پر ایک ٹریکٹر اینٹ دے دیجئے، ایک نل لگوا دیجئے، ایک پنکھا لگوا دیجئے، آپ ٹوائلٹ بنوا دیجئے، آپ یہاں کے پونڈری اللہ تعالیٰ حسن افضل کی اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ لاکھے جلتے رہے دشمنان نبی کم نہ ہوں گے کبھی مدح خواب نبی۔ لاکھے جلتے رہے کہ لاکھے جلتے سنت پہ بس عاشقان نبی، یہ صداقت اطاعت سلامت رہے، خواہش جلتے رہے۔ ایک شاعر دوسرے شاعر کو نواز دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جناب حافظ صفت اللہ صاحب نے انڈیا میں نیپالی 100 روپے سے حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ مطلب 100 روپے انڈین نہیں ہے، 100 روپے MC ہے، ایسے کے بجائے۔ لاکھے جلتے رہے دشمنان نبی کم نہ ہوں گے کبھی مدح خواب نبی۔ لاکھے جلتے رہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دارالعلوم کو ذہن میں رکھیں اور دارالعلوم کے ماہرین نے جو تیار کیا ہے، ہم سب کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاضی مجیب الرحمان صاحب قاسمی سے توجہ چاہتا ہوں، اور یہ شعر خصوصاً حضرت سے اور مولانا دارالعلوم سے توجہ چاہتا ہوں اور تمام قاسمی علماء سے توجہ چاہتا ہوں۔ یہ شعر بطور خاص ملا فرمائے جب پڑی ماہ تے باقی اسے پر کرن جگمگایا ہے قاسم کا پیارا چمن، جب کڑی ماہ تے باقی اسے پر کرن جگمگایا ہے قاسم کا پیارا
चमन जब पड़ी माह तैबा कि जब पड़ी सलामत रहे या इलाही सबा। आज के जलसे के सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना दाऊद साहब ने 110 अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। लाके जलते झूमती जिंदगी झूमते गुलशन कासनी सलामत रहे या इलाही सबा। एक और बगल में 100 रुपये से हसदा की और एक और किसी और के तरफ से अल्लाह ताला मौलाना ला के दे रहे। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। ये आप इनाम नहीं बल्कि हमें दुआएं दे रहे। तमाम माँ बहनों से, तमाम भाइयों से, तमाम खुसूसन हमारे बगल में मेहमान भी रहते हैं। आप सबों से दुआ का तलबगार हो कि आप मेरे हक में दुआ। इसलिए बहुत एक शेर पढ़ता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मदुल्लाह साहब रहमानी मज़्ज़रल्लाहु मरक़बहू ने कहा था कि कल क़यामत के दिन चाचा जी किसी के पास ही ना है डाटा केबल, खराब हो चुका, चार्जर नहीं हो रहा। यहाँ सबका घर है, बोले किसको होगा, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। हाँ ये बात है। लाइट भी भाग गया, सब कह रहे हैं लाइट भाग गया है। लाइव को बंद कर देते हैं।